पहले तो ये समझ लेना कि whenever we go through the like economics, we have to validate our studies, we have to validate our findings. Validate मतलब क्या? We have to like prove that with our study, with the figures and the facts. So when you say like India is a growing country, then you have to show that our gross domestic product GDP is increasing. Then you can say it is a developing countries. When you say the employment is right, in employment generation is increasing, so that must be supported by the figures. When you are saying literacy rate in India is increasing, that must be supported by the figures. Pass out students, enrollment basically, like primary education enrollment, secondary education enrollment, higher secondary education enrollment, college, university enrollment. Through that figures, you can validate your fact that literacy rate in India is increasing, or any particular region, any country, jurisdiction, it's increasing. So when example, I say, like in 12th, you will be studying the law of demand, law of supply. And when I say the prices increases, people demand less. When the price of a commodity increases, people demand less and less of the commodity. That is proved by the fact. You can, right, go and study a particular प्रोडक्ट इन अ मार्केट. अगर उसकी प्राइस इतनी होगी तो कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो कितने लोग डिमांड कर रहे हैं. Preparing the table and everything by getting the facts, you can come out with your statement. Yes, when the price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. Simple statement hai, but it's a very important, like helps in taking important decisions in the businesses. बहुत सिंपल चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट जब भी कोई इकोनॉमिक्स में कोई जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है, that is supported by the figures. So obviously when I'm talking about the figures, do we consider the entire, all the population, that is set of data, it's called as a population, right? Set of observations, all observations put together, it is a population, right? हम उसको population बोलते हैं. entire data, एग्जाम्पल क्लास में 100 बच्चे एंड हम 100 बच्चों के मार्क्स लिख देते हैं कि इस टेस्ट में सबको कितने मार्क्स आ गए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. सो दैट इज द डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट्स. आप जिस कॉलेज में हो, उस कॉलेज में जितने मोबाइल आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके मोबाइल नंबर इज अ डेटा. सो द एंटायर डेटा इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन. एंटायर डेटा इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Data is different, information is different. Data is very basic thing, and when we crystallize the data, जब हम डेटा को उसमें से अननेसेसरी अनवांटेड चीजें निकालेंगे, उसको ठीक से टैबुलर करेंगे, राइट, उसको टैबुलाइज फॉर्म में लेके आएंगे, उसको प्रॉपर उसके एनालिसिस के लिए रेडी करेंगे, एंड फिर जो डेटा होता है वो होता है इंफॉर्मेशन. डेटा इज अ राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेटा इज रॉ in the nature. Information, that people don't use data, people use the information. Try to understand. So data needs to be converted to information. उसके लिए हमें ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए स्टैटिस्टिक्स, डेटा इज गवर्न बाय द स्टैटिस्टिक्स, एंड इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं. सो इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है स्टैटिस्टिक्स. इन योर 11th, इन योर 12th, इन सीए फाउंडेशन एंड इवन सी इंटर लेवल, जब आप इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. You will find the tables, graphs, data, formulas in economics, because it's very simple. We are studying the maybe human behavior. We are studying the micro at a micro level or macro level, right? Larger scale. So obviously economics में कोई भी statement आता है तो हम data देते हैं. I was going through मन की बात today in the morning. PM मोदी की आज मन की बात थी 11 बजे, right? 10 या 11 बजे, 11 बजे. यस. सो उन्होंने एक बोला कि इंडिया ने वैक्सीनेशन 30 लाख कोविड वॉरियर्स को वैक्सीनेशन किया विद इन 15 days. एंड उन्होंने बोला वही यूएसए ने, राइट,
उनके कोविड वॉरियर्स को 30 लाख कोविड वॉरियर्स को वैक्सीन के लिए दे टुक 18 डेज एंड वही ब्रिटेन ने टेक 36 डेज. सो वी आर वेल अहेड, राइट. उन्होंने उनका स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई किया कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन है इट इज लाइक ए बेंचमार्क फॉर अदर कंट्रीज. हमने 30 लाख कोविड वॉरियर्स का वैक्सीनेशन 15 डेज में किया, यूएसए ने 18 डेज में किया, एंड ब्रिटेन ने उसके लिए 36 डेज लिए. सो देखो उनका जो स्टेटमेंट है इट इज सपोर्टेड बाय व्हाट? द फिगर्स. हिज स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द फिगर्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो ऐसे जनरल राइट, जब भी आप स्टेटमेंट देते हो तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई तो वैल्यूज होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सो जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है तो उसके साथ डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स आते हैं. स्टैटिस्टिक्स इज an इंटीग्रल पार्ट. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेसिकली there are two types of there are two types of statistics. लिख लेना, there are two types of statistics. Before we go into chapter, two types of statistics. That देना. Okay, let me share the screen. मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की. ओके ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो. इंपॉर्टेंट चीजें. या okay. Can you see my screen now? Can you see my screen? Please confirm. Yes, screen थोड़ी split हो रही है. अच्छा, स्क्रीन क्लियर दिख रही है. मुझे उसको फिर से शेयर करना होगा. लेट मी चेक. नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है. लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन. एक मिनट क्लोज करके मैं फिर से शेयर करता हूँ. Just a second. चेक इट इज. चेक एक बार चेक करो एवरीवन प्लीज. दिख रही क्या स्क्रीन? ओके. या जस्ट ए सेकंड, मुझे चार्जिंग लगाने दो फिर हम. चलो. So there are two types of statistics that everyone should understand. Two types of statistics. लिख लेना. First, types of statistics. First, descriptive statistics. एंड दूसरा होता है इन्फेरियल inferential statistics. What do you mean by descriptive statistics? लिख लेना. Right, it describes
describes what is going on in a population. In a population or entire series of data, entire data set. और जो चैप्टर हम कर रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज, partition values forms the part of descriptive statistics. So descriptive statistics deals with the entire data, पूरे डेटा के साथ वो स्टडी करना है. पूरे डेटा को स्टडी करने की स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. We study each and every element of the population. ठीक है. एंड दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब राइट हम इन्फर्ड करेंगे मतलब वी विल स्टडी ए सैंपल, वी विल ट्राई टू स्टडी हाउ द सैंपल बिहेव्स एंड वहां से हम इन्फर्ड करेंगे, हम मानेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बिहेव करता है. सो इट इज स्टडी ऑफ सैंपल, नॉट द एंटायर population. Inferential statistics allows scientists to take findings from a sample group. And generalize them to the whole population, to a larger population. Inferred करना मतलब एग्जाम्पल, what do I inferred? इंफर्ड मतलब एज्यूम करना. कोई हमें सिग्नल्स दे रहा है, वो सिग्नल से हम इंफर्ड करेंगे उनको क्या बोलना है. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक जब इलेक्शंस होते हैं एंड लाइक प्री एग्जिट एंड पोस्ट एग्जिट पोल्स आते हैं, बराबर ना. तो डू यू थिंक कि वो लोग जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं, जो सर्वे करते हैं, सर्वे एजेंसीज, डू दे अप्रोच ईच एंड एवरी वोटर इन द कंट्री और इन द रीजन? नो. वो क्या करते हैं कि दे सिलेक्ट द सैंपल, लाइक वो कोई टीचर्स को मिलेंगे, कोई डॉक्टर्स को मिलेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलेंगे, कोई इंजीनियर्स को मिलेंगे, लेबर्स को मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स को मिलेंगे. उसमें भी कैटेगरी, सीनियर सिटीजन्स इतने रहेंगे या यूथ इतने रहेंगे, जेंडर के हिसाब से भी रहेगा, लाइक लेडीज इतने रहेंगे, जेंट्स इतने रहेंगे. अलग अलग ढंग से वो पॉपुलेशन को है ना सैंपल उठाएंगे. लाइक एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि हमें 10 डॉक्टर्स का सर्वे करना है, 10 डॉक्टर्स को ओपिनियन पूछना है. उसमें सपोज लाइक 6 विल बी मेल, 4 विल बी फीमेल, उसमें भी एज के हिसाब से रहेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट सिंपल टास्क टू फाइंड द और टू एक्सट्रैक्ट द सैंपल्स. नो, नॉट एट ऑल. एंड सैंपल साइज शुड बी लाइक ह्यूज, बिकॉज आप पूरे इंडिया या किसी रीजन का प्री एग्जिट या पोस्ट एग्जिट सर्वे कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट क्रॉस ऑफ पीपल विल बी वोटिंग. तो हम 100 लोगों को पूछ के भी काम नहीं होगा. We have to ask at least 10-20 lakhs people, and accordingly हम एक सैंपल डिसाइड करेंगे, एक सैंपल साइज डिसाइड होगी. उस सैंपल साइज को हर प्रोफेशन के लोग रहेंगे, हर जेंडर के लोग रहेंगे, हर एज के लोग रहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर रीजन भी रहेगा, खाली सिटीज में जाके नहीं पूछा जाएगा, रूरल एरियाज में जाके पूछा जाएगा, डेवलप एरियाज, नॉन डेवलप एरियाज, दोनों जगह पे जाके पूछा जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ऐसे एक सर्वे सैंपल बनाया जाएगा एंड उस सैंपल को पूछा जाएगा, राइट? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विल इमर्ज एज ए विनिंग पार्टी? एंड उनको स्टडी करके, उनके आंसर्स को स्टडी करके हम एक जनरल स्टेटमेंट देंगे कि हमें लगता है इस पार्टी को इतने सीट्स मिलेंगे, इस पार्टी को इतने मिलेंगे, लाइक दैट.
ये जो चल रहा है ना, जो मैंने एग्जांपल दिया, इट इज इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, सैंपल स्टडी करना। ब्लड, आपका जब ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, दे टेक लाइक सम सैंपल ऑफ योर ब्लड, नॉट द एंटायर। यूरिन टेस्टिंग होता है, आपने देखा होगा, ब्लड टेस्टिंग होता है, क्या पूरा ब्लड निकाल के चेक करते क्या? जस्ट 1 or 2 राइट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, वो आपको पूरा डायग्नोस करता है आपके डिसीजेस का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें हम एक सैंपल लेते हैं और सैंपल से हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं। वो जो आ गया ना, वो इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ गया। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। So, वो difference descriptive statistics is, you can say, each and every element of the population का opinion लिया जाएगा, उनका study किया जाएगा, उनको minutely observe किया जाएगा. It takes time. It's not that easy. And दूसरा होता है inferential statistics, जिसमें like experts like select the sample, and sample select करना इतना easy नहीं. Try to understand. Select the samples and accordingly they, जो भी उनका outcomes आते हैं उस sample से, वो बोलते हैं पूरे पॉपुलेशन का भी वैसे ही ट्रेंड रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ लाइक इंफरेंशियल, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, प्री एंड राइट पोस्ट एग्जिट पोल्स वगैरह, ये सब चीजें जो आता है वो आ गया आपका राइट इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। हमें क्या स्टडी करना है? हमें पार्टीशन वैल्यू स्टडी करनी है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। We are more interested in the chapter into descriptive statistics. ठीक है? Then try to understand. There are 3 types of data series. When we collect the data, we can present the data into 3 types. The first type is individual series. Individual series. इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा सीरीज, इंडिविजुअल डेटा सीरीज, इंडिविजुअल डेटा सीरीज, डिस्क्रीट डेटा सीरीज, एंड तीसरा होता है कंटिन्यूस डेटा सीरीज। What is difference? Try to understand. यहाँ पे नो फ्रीक्वेंसीज, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं प्रेजेंट करते, नो फ्रीक्वेंसी कॉलम। यस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कॉलम रहेगा। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज गेटिंग रिपीटेड इन द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में, वो डेटा में एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है। लाइक एग्जांपल, हम सचिन तेंदुलकर के स्कोर्स निकालते टेस्ट में। उसने सपोज 200 इनिंग्स खेली है, 200 मैचेस खेले, हर मैच में 2 इनिंग्स, तो कभी कभी वो नॉट नेसेसरी हर मैच में वो खेला भी होगा। 200 टेस्ट खेले उसने, 2 बार हर टेस्ट में 2 इनिंग्स, तो हम ऐसे उसके स्कोर्स लिख देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आ गया लाइक, और लाइक 100 उसने कितने बार बनाए? सपोज उसने 51 टाइम्स 100 रन बनाए, तो 100 रन ही स्कोर 51 टाइम्स, सो 100 51 टाइम्स। सो उसके जो स्कोर्स रहेगा ना, उसमें 100 से ज्यादा 51 नंबर रहेगा। 100 या 100 से ज्यादा 51 टाइम्स किए, तो वो 51 टाइम्स इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है? फ्रीक्वेंसी कॉलम। यहां पे कंटिन्यूस डेटा में क्लास इंटरवल्स plus frequency column. So we divide that into class intervals and frequency. Example, in a class of, ठीक है, in a class of, try to understand,
in a class of I can take कैसे हम कर सकते हैं in a class of 20 students, their marks in economics out of 30, राइट। सो ध्यान देना, मैंने लिखा है किसी को 5 मार्क्स मिले, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 8, किसी को 2, किसी को 7, किसी को 11, किसी को 13, किसी को 17, किसी को 18, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 2, किसी को 13, 1, 2, मुझे चेक करने दो, ध्यान देना, आपको समझेगा मतलब पूरा परफेक्ट। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। So these are the marks. These are the scores by the 20 students. This is score of 20 students. ध्यान देना, this is score of 20 students. ये जो डेटा है ना, ये डेटा है इंडिविजुअल डेटा, हर स्टूडेंट के अपने अपने मार्क्स, हर स्टूडेंट के अपने अपने मार्क्स। दिस इज इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। सो फर्स्ट इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा, दिस इटसेल्फ इज इंडिविजुअल डेटा। लाइक मैं इसे लिखता हूं 5 10 15 28, 5 लिखता हूं तो मेरा बाद में मुझे इजी लगेगा, ठीक है। देन 2 7 11 13 एंड 17, ये 10 हो गए। 18 5 10 2 13, ये 15 हो गए। 13 19 0 2, अच्छा एक और चाहिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुछ तो मिस हुआ है क्या? 5 10 15 20, ये 5 आ गए पहले 8 तक, फिर 2 से 17, 2 से 17, ठीक है, 2 से 17, ये नेक्स्ट 5 आ गए बराबर। आगे 18 से 2, 18 5 10 8 2 चाहिए, ठीक है 8 2, हाँ, और लास्ट वाले 5 13 13 19 0 2 हो गए। क्लियर? अब ध्यान देना, दिस इज योर इंडिविजुअल डेटा, दिस इज योर इंडिविजुअल डेटा, हर स्टूडेंट का अपने अपने स्कोर्स। अगर आप इसको डिस्क्रीट डेटा करना है तो कैसे करेगा? डिस्क्रीट डेटा, how will you calculate discrete data? How will you calculate discrete data? ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, डिस्क्रीट डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एवरीवन। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल डेटा है ना वो कितने बार रिपीट हुआ है। लाइक एग्जांपल, लोएस्ट मार्क्स इज 2, तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिल रहे हैं, यू कैन सी 2 2 2, 3 स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले। उसके बाद 2 के बाद आप पकड़ के चलो, 2 के बाद मैक्सिमम कितना है, उसके हायर आई थिंक डायरेक्टली 5 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स बराबर ना, 2 के बाद 5 मार्क्स है। सो 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, ध्यान देना। 5 मार्क्स 1
two students have scored 5 marks. Two students, अच्छा 0 is also lowest, अच्छा 0 is lowest, चलो 0 is lowest, वो एक बच्चे को 0 मिले शायद से, यस एक बच्चे को 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 के बाद 2, 2 के बाद 5, उसके बाद 5, अच्छा उसके बाद देखेंगे 5 के बाद 7 दिख रहा है मुझे, 7, हाँ 7, तो 7 कितने बच्चों को मार्क्स मिले, 7 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, आई थिंक देयर इज ओनली 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। उसके बाद 7 के बाद 8 है, there is a student, I think there is only one student who has scored 1 mark, there is only one student जिसको 8 मार्क्स मिले, आगे then this can be 9 नहीं है, 10 है, yes 10 मार्क्स वाले कितने, 10 मार्क्स वाले कितने, लेट मी चेक, 10 मार्क्स वाले 2 है, 1 2 स्टूडेंट्स हैव 10 मार्क्स, फिर 10 के बाद 11, ऐसे ही देख रहा हूं 11 वाले कितने, कितने ऐसे बच्चे जिनको 11 मार्क्स मिले, ऐसे कितने बच्चे जिनको 11 मार्क्स मिले, सो 2 स्टूडेंट्स फॉर 8 मार्क्स, अच्छा 8 मार्क्स के 2 है क्या, नहीं रे, एक इस लाइन में एक भी नहीं है, इसमें एक है, अच्छा 2, ये वाला भी उठाना है, तो देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 8 मार्क्स, गुड। सो 11 वाले कितने, 11 वाले कितने, एक फर्स्ट लाइन में नहीं, सेकंड लाइन में नहीं, थर्ड कॉलम में नहीं, फोर्थ में, तो एक ही बच्चा है जिसको 11 मिला, 11 मार्क्स मिले। उसके बाद 11 हो गया, 11 के बाद आएगा 12, 12 वाला एक भी नहीं, 13, कितने बच्चे जिनको 13 मार्क्स मिले, 13, 1 2 3, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 13 मार्क्स। 13 के बाद 14 वाला कोई नहीं है, 15 वाला है एक, ऐसे कितने बच्चे जिनको 15 मार्क्स मिले, ठीक है 15 मार्क्स मिले, अच्छा आउट ऑफ 20 मार्क्स ले लो, 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 मार्क्स, मैंने 20 मैक्सिमम रखा था, ठीक है। आगे 15 वाले कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चा जिसको 15 मिले, 16 वाला एक भी नहीं है, 17 वाला 17 का एक है शायद से, 17 का एक है, 17 का एक है, ओके। 18 वाला आई थिंक कोई नहीं है, 19 है, फिर 19 का भी एक है बच्चा शायद से, नहीं 18 का है ना, 18 का एक है, 18 का एक, 19 का एक, 18 एक 19 एक, ओके 19 का एक, ओके गुड, और एक बाकी है 20 का एक, तो इसकी टोटल 20 आनी चाहिए, 20 बच्चे है ना, 1 4 6 7 9 11 12 12 प्लस 15 16 17 18 19 20, परफेक्ट। सो ये जो डेटा आ गया ना, ये डिस्क्रीट डेटा आ गया, इस डेटा को बोला था डिस्क्रीट डेटा, ये आ गया इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा ये नहीं बोलता, ध्यान देना, इंडिविजुअल डेटा ये नहीं बोलता कि 5 मार्क वाले कितने, 2 मार्क वाले कितने, 18 मार्क वाले कितने, वो खाली 20 स्टूडेंट्स थे, 20 मार्क्स की टेस्ट थी, 20 स्टूडेंट्स थे, 20 मार्क्स की टेस्ट थी, हमने ढूंढा किसको कितने मार्क्स मिले, हमने एक डेटा बना दिया, वो आगे इंडिविजुअल सीरीज। और जब उसको थोड़ा आप क्या करोगे, अगर उसको इसे हर जो वैल्यूज है, इतने सारे वैल्यूज है आपके पॉपुलेशन में, एक वैल्यू कितने बार रिपीट हुई, अगर ऐसे ठीक से लिखोगे, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, इसको बोला जाएगा डिस्क्रीट डेटा। एंड हम इससे ही कंटिन्यूस सीरीज भी बना सकते हैं, लाइक दिस कंटिन्यूस सीरीज। सो दैट इज थर्ड इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। 0 to 4 मार्क्स कितने, 4 इंक्लूडिंग दैट, 5 to 9 मार्क्स वाले कितने, तो 9 इज इंक्लूडिंग दैट, 10 to 14 मार्क्स वाले कितने, राइट, एंड 15 to 20 मार्क्स वाले कितने। मैंने जानबूझ के ऐसे सीरीज किया, और यू कैन से 0 to 5,
बट 5 आगे वाले में आएगा, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। 5 इसमें नहीं रहता, 5 आगे वाले में रहता है, 10 इसमें नहीं रहता, आगे वाले में रहता है, 15 इसमें रहता है, ठीक है, लाइक दैट। तो लिखने का तरीका है, आप कैसे लिखते हो, दिस इज क्लास इंटरवल, इसको आप बोलते हो क्लास इंटरवल, बराबर ना, इसको आप बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। ये आ गया आपका क्लास इंटरवल, कंटिन्यूस सीरीज है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ऐसे कितने बच्चे जिनको 0 to 5 के बीच में मिले, नंबर ऑफ इंटरवल्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरवल क्यों बोल रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी, कि 0 मार्क्स कितने बार रिपीट हुए, 2 मार्क्स कितने बार रिपीट हुए, 5 मार्क कितने बार रिपीट हुए, 7 मार्क्स कितने बार रिपीट हुए, 10 मार्क कितने बार रिपीट हुए, 19 मार्क कितने बार रिपीट हुए, 20 मार्क्स कितने बार रिपीट हुए, लाइक दैट। तो ये फ्रीक्वेंसी है। एक वेरिएबल आपके डेटा का जो ऑब्जर्वेशन है, एक वेरिएबल है, वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। सो अब देखेंगे क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब 0 to 5 के बीच में, 0 to 5 के बीच में कितने बच्चे, 0 to 5 के बीच में देयर आर 4 स्टूडेंट्स, देयर आर 4 स्टूडेंट्स जिनको 0 to 5 के बीच में, 0 to 4, 5 to 10, 10 लेना नहीं है यहां तक, देयर आर 2 + 1, 3 + 5, 5 स्टूडेंट्स, नहीं 10 to 15, 15 नहीं लेना है, 15 आगे वाले इंटरवल में डालना है, कितने बच्चे 10 to 15 के बीच में, 2 + 1, 3, 3 + 3, 6, एंड 15 के आगे कितने बच्चे, आई थिंक 5 या 6 स्टूडेंट्स रहेंगे, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे आने, 20 नंबर आना चाहिए, 9 + 5, 9 + 6, 15, 15 + 5, 20। इस टाइप्स के डेटा को बोला जाता है, राइट, इसको राइट, इसे क्लास इंटरवल या क्लास बोला जाता है, जो भी आपको बोलना बोलो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, आई थिंक अब आपको 3 टाइप्स के डेटा समझ में आएंगे, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस। एक ही डेटा को मैंने आपको तीनों में दिखाया, एक ही डेटा को हमने तीनों इसमें कन्वर्ट किया, तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 3 डेटा सीरीज, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट ग्रुप लाइक कंटिन्यूअस डेटा। हमें इन तीनों डेटा का हमें पार्टीशन वैल्यूज ढूंढने हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। यू नो वी यूज एवरेजेस, राइट ना। जनरली जो डेटा होता है, राइट, ध्यान देना, जनरली जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है एवरेजेस। आपने ऐसे डेटा देखे होंगे, मोड, मीडियन या सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आपके जो 10th में सपोज किसी को 80% आ गए, मैं अगर आपको पूछता हूं तुझे कितने मार्क्स आ गए, आप ये नहीं बोलते मुझे इंग्लिश में 79 आ गए, मुझे साइंस में 95 आ गए, मैथ्स में 99 आ गए, आप ऐसे एक एक नहीं बोलते, आप मुझे बोलते हो सर ऑन एन एवरेज मुझे 80% आ गए। आप क्या बोलते हो, 80%। सो जो 80% जो नंबर है ना, इट इज एवरेज, इट रिप्रेजेंट्स योर मार्क्स। आपके जो 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ना, नॉट नेसेसरी वो 80 है, कोई सब्जेक्ट में 80 के नीचे रहेंगे, कोई सब्जेक्ट में 80 रहेंगे, कोई सब्जेक्ट में 80 के आगे रहेंगे, बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग द मार्क्स ऑफ 5 और 6 सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो 80 नंबर से, 80% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एवरेज हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। इट इज ऑल्सो इजी टू रिमेंबर द एवरेज। इंस्टेड ऑफ टेलिंग 6 नंबर्स, आपको आप भूल भी गए होंगे कि आपको कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, बट आपको आपके परसेंटेज याद रहे होंगे। रीजन इज वेरी सिंपल, एवरेज एक ही नंबर रहता है जो पूरे आपके 6 सब्जेक्ट्स का राइट डिस्क्रिप्शन देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं। एवरेज हेल्प्स यू टू जज, एवरेज हेल्प्स यू टू टेक द डिसीजन, एवरेज रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। एंड जो आपका एवरेज रहता है ना, सिंपल एवरेज या जो कुछ भी है, वो एवरेज लाइज बिटवीन द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। किसी सब्जेक्ट में आपको 60 है, किसी सब्जेक्ट में आपको 90 है, योर लोएस्ट 60 वाला है, हाईएस्ट 90 वाला है, एवरेज विल लाई बिटवीन द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज।
and averages are very commonly used. What is GDP? It's an average. Try to understand. परसेंटेज में बोला है, ग्रोथ परसेंटेज में हो रही है, एवरेज है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरेजेस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द डेटा इन अ बेटर वे. अगर कोई बोलता है मुझे 100 मार्क्स है, मुझे 100 मार्क्स है, तो इससे होता क्या है, राइट? जब मैं बात करता हूं कि मुझे 100 मार्क्स है, तो राइट, कोई बच्चा मुझे बोलता है सर मुझे 100 मार्क्स है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड. बट मैं बोलता हूं आउट ऑफ, वो बोलता है 1000. तो 100 आउट ऑफ 1000 मार्क्स इज ऑर्डिनरी मार्क्स यार, इट इज 10%. बट वही अगर मैं उसको बोलता हूं 100 आउट ऑफ 100, तो उसको 100% हो गए. नंबर पे मत जाओ, 100 में मिसगाइड यू, 100 वैल्यू में मिसगाइड यू. एवरेज पे जाओ, परसेंटेज पे जाओ. जब वो बोलता है मुझे 10% है, तो 1000 में से 100 मार्क्स रहेंगे, 100 में से 10 मार्क्स रहेंगे, 500 में से मे बी उसको 500 का 10% 50 मार्क्स रहेंगे. परसेंटेज और एवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कभी भी याद रखना. अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए एवरेज सिस्टम होती है. सो 100 से मिसगाइड हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम बोलते हैं, किसकी बात करते हैं? एवरेजेस की बात करते हैं. एंड बिकॉज सिंपल नंबर्स कैन मिसगाइड यू, सिंपल नंबर्स कैन मिसगाइड यू. आगे लिख लो. सो एवरेजेस हम समझते हैं. लिख लेना व्हाट, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज. लिख लेना एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज. लिख लेना. It is a single value that represents, that describes the entire, the characteristics of, that describe the characteristics of entire data. A single value that describes the characteristics of entire data is called as central value or average. Central value or average. Average. ठीक है. It lies between two extreme values. Two extreme, that is minimum and maximum value of the data. It lies between the range. Population. Next, आगे. Then what do you mean by, now अब हम like we will discuss the chapter. ये chapter का base है, ठीक है. What do you mean by partition values? लिख लेना. What are the partition values? What are the partition values? And right, and need of them. This question is repeated many times. Need of them. What is partition values? लिख लेना simple words में. Partition values लिख लेना. What do you mean by partition value? Partition मतलब क्या? इंडिया का पार्टीशन हुआ था in 1947. दो कंट्रीज में पार्टीशन हो गया. डिवाइड. हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली गॉट पार्टेड. पार्टीशन हो गया फैमिली का. दो हिस्सों में बढ़ गई फैमिली, 3 हिस्सों में बढ़ गई, 4 हिस्सों में बढ़ गई. पार्टीशन मतलब डिवाइड होना. सो व्हाट इज पार्टीशन वैल्यूज? जो हमारा डेटा होता है, पूरा पॉपुलेशन होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो उसको बोला जाता है पार्टीशन. तो लिख लेना व्हाट इज पार्टीशन. फर्स्ट द प्रोसीजर, दिस इज डेफिनेशन. द प्रोसीजर of dividing the data. Procedure of dividing the data into equal parts
is called as partitioning. It is called as partitioning. हम क्या करते हैं, डेटा को, हमारे जो सीरीज है, इट में बी इंडिविजुअल सीरीज, इट में बी डिस्क्रीट सीरीज और इट में बी कंटिन्यूस सीरीज, एज द केस में बी, जो भी सीरीज रहेगी उस डेटा को हम अलग अलग हिस्सों में पार्टीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, उस प्रोसीजर को बोला जाता है पार्टीशनिंग. देन सेकंड, values that divides, values dividing the data into a required number of equal intervals, required number of equal parts are called as partition values, are called as partition values. हम पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड जो वैल्यूज उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी उस वैल्यू को बोला जाएगा पार्टीशन वैल्यू. आगे देन थर्ड, मीडियन इज ए स्पेशल type of partition value. Median is a special type of partition value because it divides entire data. It divides right entire data into two equal parts. Median is very common, into two equal parts and has equal number of values, equal number of observations above and below it, ठीक है. Another examples like median example, I have example 9 numbers, मेरे पास 9 numbers है. So उनमें से जो मिडिल नंबर रहेगा, जब मैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा 9 नंबर्स को, द फिफ्थ नंबर 9 + 1 10/2, फिफ्थ नंबर जो रहेगा, फिफ्थ नंबर के पीछे 4 वैल्यूज रहेंगे, फिफ्थ नंबर के आगे 4 वैल्यूज रहेंगे. सो दैट फिफ्थ नंबर, साइज ऑफ द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा, size of the fifth observation is a median. It divides the total observations into two equal parts. Fourth, like median, there are quartiles, deciles and percentiles. Percentiles are also partition values. ये सबको पता है partition values. ठीक है. In general, they are called as fractals. पार्टीशन वैल्यूज को फ्रैक्टाइल्स भी बोला जाता है. ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. पार्टीशन वैल्यूज इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. दिस इज the meaning of partition values. Then what is the need? Why you need partition values? First, statistical data consists of ये क्वेश्चन बहुत बार 2-3 ही क्वेश्चन मुझे लिख के देने, ये पूरी थ्योरी इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं. स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ
extreme values on the lower side and higher side magnitude. आगे, such values are called as outliers. They are called as outliers. मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, एकदम लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू को बोलेगा आउटलाइनर्स, उनके बीच में पूरा डेटा रहेगा. लाइक एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूँ 20 मार्क्स की टेस्ट है तो लोएस्ट वैल्यू कैन बी 0, हाईएस्ट वैल्यू कैन बी 20. कितने भी स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स पेपर लिखें, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 20 के बीच में रहेंगे. 1000 बच्चों को टेस्ट लिखने तो 0 to 20 के बीच में मार्क्स रहेंगे. लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं. अब जब बोर्ड्स के पेपर लिखते हो, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट एग्जाम्स, सबके मार्क्स या तो 0 या 100 के बीच में रहेंगे. सो 0 एंड 100 जो पूरा डेटा रहेगा, जितने सारे स्टूडेंट्स का अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो राइट, उसके आउटलाइनर्स इज 0 एंड 100. ठीक है. सो एक्सट्रीम वैल्यूज आर कॉल्ड एज आउटलाइनर्स. आगे आउटलायर्स. देन नेक्स्ट, second, the averages. The averages used for such data often misrepresents right its representative value. होता क्या है, अगर मैं बोलता हूं किसी क्लास का एवरेज 70% है, मतलब 70% ऑन एन एवरेज मार्क्स मिलते हैं, वो हमेशा परफेक्ट बात नहीं करेगा. अगर मैं बोलता हूं कि चलो मान के चलते कि 70% एवरेज है, बट मैं बोल रहा हूं कि 0 to 10 के बीच में, परसेंट के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उससे मुझे और ज्यादा एनालिसिस करने को चांस मिलेगा. तो मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में जाते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि सीए में जनरली बच्चे फेल ज्यादा होते हैं, passing percentage is less as compared to other courses. Passing percent 30-35% है, but it is less as compared to other courses. जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है तब ये चीज नहीं बोली जाती कि सीए में 2 तरीके से पासिंग होती है. पासिंग क्राइटेरिया 2. 1, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाना है, मतलब हर पेपर में 40% लाना है, एंड एग्रीगेट पुट टुगेदर आपको 50% होना चाहिए. तो हम खाली बोलते हैं पासिंग परसेंटेज 30-35%, 40% है, बट अगर आप देखते हो ना, मैक्सिमम बच्चे इंडिविजुअल पेपर्स में पास होते हैं, बट एग्रीगेट में 50% नहीं आते. मतलब बच्चे को एग्जांपल 400 मार्क्स के पेपर है, 100 मार्क्स के 4 पेपर है, 100 ऐसे 4 पेपर है, उसमें हर पेपर में 40 आ जाएंगे, बट पुट टुगेदर 200 मार्क्स नहीं होते. 400 में से 50% चाहिए 200. मतलब कोई बच्चा रहेगा जिसको 4 पेपर में 45 आ गए, उसके टोटल मार्क 180 है, हर पेपर में वो पास है, बट पुट टुगेदर 180 है, जो 200 से कम है, इसलिए वो फेल है. ऐसे बच्चों का नंबर ज्यादा है. वो इंडिविजुअल पेपर में पास होते हैं बट एग्रीगेट में फेल होते हैं. ये कोई नहीं बात करता ना. जब आप पार्टीशन वैल्यूज को स्टडी करोगे, जब आप अलग काइंड्स के एवरेजेस को स्टडी करोगे, तब आपको समझेगा कि यार ये दिखता 35% है, बट इंडिविजुअल बेसिस पे द रेट वाज और द पासिंग परसेंटेज वेरी हाई. नॉर्मल पासिंग परसेंटेज नहीं है, जैसे आपको बोर्ड्स में 35% आ गए तो आप पास हो गए. सीए में मतलब आपको हर पेपर में 35 आने चाहिए, तो अपने आप 35% हो गए. बोर्ड्स में हर पेपर में 35 मार्क्स आ गए तो आपको अपने आप 35% हो गए. सीए में वैसे नहीं है, हर पेपर में 40 चाहिए, मतलब आपको 40% हर पेपर में चाहिए,
और आपको 40 से काम नहीं होगा, ओवरऑल 50% चाहिए, तो पासिंग बिकम्स मच डिफिकल्ट। तो आप ऐसे स्टडी सेट कर सकते हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंडिविजुअल में पास हुए हैं बट एग्रीगेट में फेल हुए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं वो एग्रीगेट में पास है 200 से ज्यादा है बट किसी पेपर में उनको 40 से कम है इसलिए वो फेल है। सो ट्राई टू, फेल की भी कैटेगरी है, 2 टाइप्स के फेल होते हैं, एक या 3 टाइप्स के फेल है। एक इंडिविजुअल में पास है, एग्रीगेट में फेल है, हर पेपर में 40 है बट 200 से कम है, दिस इज वन कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, एग्रीगेट में पास है बट इंडिविजुअल में फेल है, 200 से ज्यादा है बट किसी एक पेपर में 39 है, किसी एक पेपर में 38 है, किसी एक पेपर में 20 है, हो सकता है। और कोई बच्चे ऐसे तो दोनों तरीके से फेल है, इंडिविजुअल में भी फेल है और एग्रीगेट में भी फेल है, ये कहां पे भी डिस्कस नहीं होता। बट जब हमारे पास पूरा डेटा दिया जाएगा तो हम स्टडी कर सकते, तो हमें पता चलेगा कि किस कैटेगरी में बच्चे जनरली फेल होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल आप जो बोलते हैं 35 to 40% से फाउंडेशन लेवल पे पासिंग परसेंटेज, 30 to 35% इंटर पे, 25 to 30% फाइनल पे है, तो वो एक नंबर बोल रहा है, दैट इज नॉट द लाइक, वो आपको एग्जैक्ट चीज नहीं बोलता। पासिंग के भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो कोई चीज नहीं बोल रहा है, वो परसेंट नहीं बोलता है। जब हम ऐसे अलग अलग पार्टीशन वैल्यू सीखेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा कि रिजल्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। सो द एवरेजेस यूज फॉर सच डेटा ऑफन मिसरिप्रेजेंट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। थर्ड, मतलब दैट इज नॉट द, दैट डज नॉट शो द करेक्ट पिक्चर। टू ओवरकम this misrepresentation, generally partition values are used. Generally partition values are used. This is the need, ठीक है, नहीं ठीक है, this is the need, ध्यान देना। First, this was my first question. My first question was, what are the partition values and need of them? My second question in the chapter is, what are the quartiles? ठीक है, what are the quartiles and need of them, right? And practical application और need कहां पे यूज होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्वार्टाइल्स divides the data into 4 equal parts. Quartiles are those values which divides the entire data into 4 equal values. Deciles are those values which divide the entire data into 10 equal parts, and percentiles are those values which divide the entire data into 100 parts. 4 parts में जो डिवाइड करेगा वो क्वार्टाइल्स होगा, 10 पार्ट्स में जो डिवाइड करेगा वो डिसाइल्स होगा, एंड 100 पार्ट्स में जो डिवाइड करेगा वो रहेगा, राइट, वो वैल्यूज रहेंगे, राइट, वो वैल्यूज रहेंगे परसेंटाइल्स। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज क्वार्टाइल्स। फर्स्ट, क्वार्टाइल्स is a partition value. It is a partition value which divides, यही डेफिनेशन बाकी जगह पे यूज करेंगे, which divides the whole set of observations. whole set इसलिए ठीक से लिख लेना, whole set of observations into 4 equal parts. सेकंड, कोई भी डेटा को अगर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यू नीड 3 वैल्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज को अगर आपको 4 इसमें डिवाइड करना है तो यू नीड 3 वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज Q1, quartile 1, second value is called quartile 2, third value is called as quartile 3. Quartile 2 is also a median,
Quartile 2 is also a median because it divides, right, into the data into two parts. So ध्यान देना, there are three quartiles. There are three quartiles. लिख लेना, right? There are three quartiles. There are three quartiles which divide the data into four equal parts. Four equal parts. That's it. When data is arranged in ascending or descending order, data is arranged in ascending or descending order, this is very important. जब भी हम डेटा पार्टीशन वैल्यूज निकालेंगे, लेट इट बी इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, हमें उसको कैसे अरेंज करना है, हमें उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. देन राइट, एक बार वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो हम उसके वो तीन वैल्यूज ढूंढेंगे जो उसको चार इसमें डिवाइड करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर. दे आर known as Q1, Q2 and Q3 respectively. Then आगे लिखो थर्ड, ठीक है. द सेकंड क्वार्टाइल, द Q2 is median itself, ठीक है, is median itself. And the last, quartiles are calculated for individual, discrete and continuous data. ठीक है, तीनों डेटा के लिए हम निकालते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल्स. द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. बहुत सिंपल है, यू नीड टू नो दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. फर्स्ट, quartiles are used in study of all types of financial information. Concerning economic data, income data, स्टॉक्स डेटा, स्टॉक डेटा मतलब इनकम, सेंसेक्स वगैरह, टैक्स डेटा, स्टॉक शेयर्स को स्टॉक्स बोलते हैं, स्टॉक डेटा शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं, सेल्स एंड सर्वे डेटा एक्सेट्रा. ठीक है. सो दिस इज द यूज. आगे, सो दिस इज द यूज. सो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक डेटा जो भी रहता है, जीडीपी वगैरह, इनकम डेटा जो रहता है, स्टॉक डेटा जो रहता है और सेल्स एंड सर्विस जो करते हैं ना, उसमें हम उस पूरे डेटा को चार अलग हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटते हैं. वहां पे यूज होता है क्वार्टाइल्स. ठीक है. सिमिलरली किसी भी डेटा को चार में डिवाइड करने को बोलते हैं, लाइक डिवाइडेशन प्रोसेस को बोलेगा पार्टीशनिंग. एंड चार में डिवाइड कर तो उन तीन जो वैल्यूज रहेंगे, उन तीन वैल्यूज को बोलेगा क्वार्टाइल्स. व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइल्स देन? मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, राइट. खाली चेंजेस क्या करूंगा, ध्यान देना. व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइल्स, ध्यान देना. डिसाइल्स मतलब क्या? क्वेश्चन आंसर इज द सेम. व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइल्स, ध्यान देना. व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइल्स में जहां पे चेंज हो रहा है मैं अलग पेन से लिख रहा हूं. And its practical use.
deciles, right? Deciles are those partition values which divide the range of the observation into 10 equal parts. So deciles, try to understand, deciles is a partition value which, right, value which, right, अच्छा, which divides चाहिए ना, which divides, एक सेकंड, which divides, यहाँ पे divides वर्ड मिस हुआ है, which divides, right, the whole set of observations into 10 equal parts. That's it. Definition remains same. There are how many? There are total 9 deciles. ये पता होगा आपको? There are total 9 deciles. किसी भी डेटा को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें उसको 9 इसमें 9 वैल्यूज मिलेंगे जो उसको टोटल 10 इसमें डिवाइड करेंगे, राइट? सो देयर आर टोटल 9 deciles which divide the entire data into 10 equal parts. Into 10 equal parts, right? When data is arranged in ascending or descending order, this is very important, ascending or descending order, they are known as P1, sorry, D, right? Percentiles P1 से वगैरह दिखाया जाता है, decile 1, decile 2, decile 3, decile 7, decile 8, decile 9, ठीक है? decile 5, जो फिफ्थ decile रहता है ना, that itself is a median, and deciles are calculated for all the kinds of data series. Deciles are calculated for individual, discrete and continuous data. Everything is the same. अगर एक समझ में आ गया बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा. So deciles are those partition values which divide the entire data into 10 equal parts. There are total 9 deciles presented by D1, D2, D3 up to D9. And D5 जो fifth रहेगा ना, that itself is Q2 as well, right? वो quartile 2 होता है, वही आपका median होता है. So Q2 is equal to D5. Q2 is equal to D5 is equal to median. ठीक है? What is the practical use? Right? हम कहाँ पे जनरली पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? ध्यान देना. Practical use is, practical use अलग है. Deciles have wide applications. Deciles have wide application. यही अलग है, right? In finance and economics. Governments uses deciles to study the level of, ये आपको पता ही होना चाहिए, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के इनकम्स को 10 हिस्सों में बांटती है. लाइक पूरे पॉपुलेशन के इनकम बताएं. लाइक एग्जांपल, लाइक पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम एनुअल. लाइक एग्जांपल 10,000 के नीचे कितने? सब ऐसे पकड़ के चलो कि हमारी टोटल जितनी हमें इनकम्स मिली है ये अलग अलग, हमने उसको 10 हिस्सों में बांटा है, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा इनइक्वालिटी कितनी है. सो टू स्टडी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये गवर्नमेंट का डेटा जो रहता है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वो सब ये कैलकुलेशन करते हैं. मेजरमेंट ऑफ poverty line, measurement of poverty line, drought conditions etc. रेन, जो रेन के मेजरमेंट आता है ना, उसको 10 में डिवाइड करेंगे. एंड सपोज लोएस्ट जो रहेंगे, लोएस्ट 3 जो रहेंगे ना, उस रीजन को बोला जाएगा ये ड्रॉट रीजन है और उनको अलग इंसेंटिव दिया जाएगा. सो गवर्नमेंट एवरी ईयर वो करती है. भले वहां पे बारिश ही होगी फिर भी गवर्नमेंट बोलती है वो ड्रॉट है रीजन एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, वहां पे बारिश कम है. समझ में आ रहा है? उसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो पूरे स्टेट को 4 हिस्सों में बांटने से होगा क्या कि बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा. तो गवर्नमेंट वैसे नहीं करती. गवर्नमेंट इसको 10 हिस्सों में बांटेगी, पूरे स्टेट को 10 हिस्सों में बांटेगी.
लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। तो हर सिटी का, हर प्लेस का रेनफॉल मेजर किया जाएगा, वो एक डेटा मिलेगा आपको। उस डेटा को आप 10 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटोगे। एंड सपोज एग्जांपल लास्ट के जो, राइट, जहां पे सबसे कम रेनफॉल हुआ है, ऐसे 2-3 राइट पार्ट्स को बोला जाएगा दीज आर ड्रॉट रीजन, और उनको अलग इंसेंटिव दिया जाएगा। एवरी ईयर गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है, ठीक है। सो ड्रॉट कंडीशंस, टू मेजर द ड्रॉट कंडीशंस। आगे इसको क्वार्टाइल्स करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और गवर्नमेंट को भी पॉसिबल नहीं होगा। सो गवर्नमेंट जनरली उनके लिए ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करती है। मे बी यू कैन से परसेंटाइल कर सकती है, डिसाइल्स इज मोर। परसेंटाइल करेंगे ना तो 100 तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। सो जहां तक बेनिफिट जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेगा। और क्वार्टाइल्स में बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है। तो डिसाइल्स इज मोर आई कैन से अप्रोप्रिएट मेजर, ठीक है, कंडीशंस। एक सेकंड, नहीं, deciles are used in investment. Second is deciles are used in investments, particularly mutual funds uses them, particularly to access the performance of portfolio investments by mutual funds. Mutual funds यूज करते हैं। Mutual funds use like deciles. So just this is, you must know these things. And the last question of the chapter is, matlab theoretical question is, what do you mean by percentiles? What do you mean by percentiles? Everything is the same with some minor changes. ध्यान देना, मैंने जानबूझ के एक आंसर लिखा है, उसको मैं कॉपी करा तो आपको जल्दी क्लिक होगा। दिस इज मीनिंग, what do you mean by, try to understand, ध्यान देना। एंड आई नीड टू डिलीट दिस, हर एक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग है, ठीक है, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल्स? व्हाट आर द परसेंटाइल्स एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? परसेंटाइल्स इज दैट partition values which divides the entire set of observations into 100 equal parts. 100 पार्ट्स में जो डिवाइड करेंगे, वो जो वैल्यूज रहेंगे, वो वैल्यूज जो पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो 19 वैल्यूज रहेंगे, उनको परसेंटाइल्स बोला जाएगा। देयर आर, राइट, देयर आर, यहाँ पे 9 डिसाइल्स होना चाहिए ना, 9 डिसाइल्स। देयर आर 99 percentiles. There are 99 percentiles. So 99 values will divide the entire data into 100 equal parts. There are 19 percentiles which divide the data into 100 equal parts. When data is arranged in ascending or descending order, they are known as, right, percentile 1, percentile 2, percentile 50, percentile 60, 98 and 98, like that, ठीक है। आगे percentile 50 is median itself, and percentiles are calculated for all, as simple as that. Percentiles are calculated for all kinds of data. देखो हर जगह पे आंसर सेम है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो अलग रहेगा, समझ लेना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लिखो परसेंटाइल्स आर यूज्ड राइट इन measurement of test scores
हेल्थ स्कोर्स, राइट, और हेल्थ इंडिकेटर्स, ये थ्योरी है, पता ही होनी चाहिए। हेल्थ इंडिकेटर्स, आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया है। हाउस होल्ड इनकम, वो वैल्यूज जनरली ज्यादा रहेंगे तो हम उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड वेल्थ, हाउस होल्ड वेल्थ, राइट, परसेंटाइल वेजेस एक्सेट्रा। उतने लोग भी रहते हैं ना, तो हम उनको उस पूरे पॉपुलेशन को, पूरे ऑब्जर्वेशन को 100 में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर बेंचमार्किंग, इट इज यूज्ड, परसेंटाइल्स आर यूज्ड फॉर बेंचमार्किंग, मतलब टारगेट रखने के लिए परसेंटाइल्स यूज किए जाते हैं, बेंचमार्किंग एंड बेसलाइन पर्पस। बेसलाइन मतलब ये मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम ये हमारा टारगेट रहेगा। बेंचमार्क मतलब टारगेट, बेसलाइन मतलब उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बेसलाइन पर्पस। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आज हमने तीन चीजें समझी। पहले हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नॉट ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, लाइक एक पार्टीशन वैल्यूज बिलोंग्स टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मैंने फिर समझा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, डेटा सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ये जस्ट उसके लिए, बिकॉज हमें वो समझना है इसलिए। चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज, व्हाट इज अ पार्टीशनिंग? Partitioning is a procedure of dividing the data into equal parts. The procedure of dividing the data into equal parts, maybe 4 parts, उसको आप quartiles बोलते हो, 10 parts आपको deciles बोलते हो, 100 parts जिसको आप percentiles बोलते हो. So it is a procedure of dividing the data into equal parts is a partitioning, right? And those values जो equal parts में divide करते हैं, उनको बोला जाता है partition values. उनको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। अगर वो 4 पार्ट्स में करने वाले तो 3 वैल्यूज को बोला जाएगा क्वार्टाइल्स। 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उन 9 वैल्यूज को बोला जाएगा डिसाइल्स। अगर डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, वो 19 वैल्यू को बोला जाएगा परसेंटाइल्स, ठीक है। सो पार्टीशन वैल्यूज आर दोस वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स द लाइक डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। आगे देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वार्टाइल्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द पार्टीशन वैल्यूज? क्वार्टाइल्स, deciles and percentiles, ठीक है। जनरली दे आर कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज को बोला जाता है फ्रैक्टाइल्स, राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। व्हाई यू नीड देम? बिकॉज जनरली होता है कि हमारा जो डेटा रहता है, राइट, उसमें बहुत वेरी हाई रेंज रहती है, मतलब लोअर एंड मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है, डिस्टेंस रहता है। तो जो एवरेजेस यूज होते हैं, नॉर्मल एवरेजेस यूज करते हैं ना, वो इतने अच्छे से नहीं बोलते। देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज 10% ओनली, देयर स्टूडेंट हु हैज 90%, और आप बोलते हो मेरा एवरेज 60% है, मतलब वो 90% को भी आप 60% की तरह देख रहे हो, 10% वाले को भी 60% की तरह देख रहे हो। हम बोलते हैं हमारे क्लास का एवरेज 60% है, तो जब 60% बोलते हैं तो हमें लगता है कि यार मैक्सिमम बच्चों को 60% रहेगा। नीड नॉट बी। लाइक एग्जाम्पल ध्यान देना, राइट। एग्जाम्पल, एक प्लेयर है शिखर धवन, उसने 4 मैचेस खेले, 5 मैचेस खेले, एक इसमें 10 है 0, एक इसमें 10 रन बनाए, दूसरे में 20 बनाए, तीसरे में फिर से 10 बनाए, और एक इसमें उसने 200 रन बनाए। 200 तो नहीं, उसने 150 रन बनाए, 160 रन बनाए, ठीक है। अब क्या होता है, हम उसका एवरेज ढूंढते हैं, उस सीरीज में उसका कितना एवरेज होगा। 5 मैचेस की सीरीज थी, तो दिखता है कि उसने टोटल 200 रन बनाए, तो 200 डिवाइडेड बाय हम बोलते हैं 5, हम बोलते हैं ऑन एवरेज उसने 40 रन बनाए। बट अगर आप देखते हो ऑन एवरेज 40 वो गलत है यार, बिकॉज 3 मैचेस में उसने 40 के आजू बाजू में भी नहीं है, एक ही मैच में उसने 160 मारे। तो अगर आप बोलते हो शिखर धवन का एवरेज स्कोर 40, वो गलत है यार, ही इज नॉट ए कंसिस्टेंट प्लेयर, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो ये जो आप एवरेज बोल रहे हो ना, इट मिस इंटरप्रेट्स द डेटा। मतलब हम बोलते हैं यार उसका एवरेज 40 भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में, हर सक्सेसिव मैच में 40 रन मारेगा, वैसे नहीं है। कभी कभार वो इतना हायर स्कोर करेगा। लाइक एग्जांपल, कोहली इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर और उसका एवरेज भी परफेक्ट बोलता है, बट सहवाग जैसे प्लेयर्स, शिखर धवन जैसे प्लेयर्स जो 10 मैच में एक ही मैच में इतना मारेंगे तो उनका एवरेज क्लियर हो जाएगा। हमें कौन से प्लेयर जनरली चाहिए जो कंसिस्टेंटली खेले, मैच आफ्टर मैच वो 40 रन बनाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ, हमें पृथ्वी शॉ जैसे नहीं, हमें शुभमन गिल जैसे प्लेयर चाहिए जो हर मैच में स्कोर बने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो एवरेज दिखाता है ना, ये इस प्लेयर का एवरेज दिखा रहा है 40 मार्क्स का या 40 रन का, वो गलत है यार। 5 मैचेस में से 4 मैचेस में उसने 40 के आजू बाजू भी नहीं, 40 का हाफ भी नहीं उसने स्कोर किया, एक ही बार किया 20, और एक ही मैच में उसने 160 मार दिया, तो उसका एवरेज दिख रहा है कि 40 है। सो ये एवरेज लेना गलत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या माना जाएगा, वो 0 to 10 कितने बार बनाया, 10 to 20 कितने बार बनाया होगा। या एग्जाम्पल ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राइट, 0 to 30 के बीच में कितने बार बनाया, 30 to 60 के बीच में कितना है उसका, 60 to 100 के बीच में कितना है। जो प्लेयर्स इस रेंज में ज्यादा रहेंगे उनको जनरली प्रेफरेंस दिया जाएगा, भले उसका एवरेज ज्यादा है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको नहीं लिया जाएगा बिकॉज ही इज नॉट कंसिस्टेंट प्लेयर। ये दिखाता नहीं वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, बट ये दिखाएगा वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया पार्टीशन वैल्यूज काइंड ऑफ थिंग, हम डिवाइड कर रहे हैं डेटा को। सो अगर, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम ये बात बोलेंगे, राइट, हमें ये दिख रहा है कि अरे धवन ने 0 to 30 के बीच में ही 4 बार रन बनाए और एक ही मैच में उसने 100 से ज्यादा बनाए, तो हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट नहीं है, एवरेज पे नहीं जाएंगे। सो एवरेज इज मिस रिप्रेजेंट, एंड इसलिए हम जाते हैं किसके लिए, हम जाते हैं पार्टीशन वैल्यूज पे। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल अभी दिया आपको एक क्रिकेटर का, जो आपको समझने में हेल्प करेगा, और एक्चुअली ये सब चीजें क्रिकेट में यूज भी की जाती है, ठीक है। सो एंड देयरफॉर देयर नीड, क्या लिखा है, statistical data consists of the extreme values, right, on a lower side and a higher side, those are called as outliners, right. Then averages used to represent such data actually misrepresents, उनका like जो हमें आंसर देते हैं वो गलत दिखते हैं हमें बहुत बार, and to overcome this misrepresentation generally partition values are used. And what are the 3 kinds of partition values? Quartiles, then deciles, and third one is परसेंटाइल्स, ठीक है। सो आज हम यहाँ पे रुके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल शेयर सम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट हम उसका, आपके पास वो पहले से लिखे होंगे, सो हम खाली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने मैथ्स में वो सॉल्व किए होंगे, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से है, ये थोड़ा उसका यूज क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें इसमें दी है, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेस सेशन। थैंक यू।